Jai Shardema students, how are you all? As you know that from 2nd of November exams are going to be started and we have already started our revision. In the previous video we revised the short and long question, that is the subjective part of our revision sheet. Now in this video we will revise the objective part. We will start from question A, tick the correct answer. The first question is, the network of latitudes and longitudes on the globe is called dash. It is called grid. So right answer is option A, grid. Second question, Tropic of Capricorn is marked as. Tropic of Capricorn की आपको डिग्री बतानी है. It is marked as 23.5 degree south. That is option B. Question number 3. The maximum distance between two lines of longitude is at the. दो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ होता है? दैट इज़ एट द इक्वेटर, बिकॉज नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ये सारी लाइन्स मैच करती हैं, इसलिए इनके बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है एट इक्वेटर. क्वेश्चन नंबर 4. डैश मेरिडियन इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन. इंटरनेशनल डेट लाइन. 180 degree longitude is called international date line. As we know, total there are 360 meridians. Out of 180 are the eastern meridians, 180 are the western meridians. But the 180 degree east or 180 degree west, they both are the same line. That's why we don't use 180 degree east or 180 degree west. East और west का symbol use नहीं किया जाता. It is simply called 180 degree, and it is called international date line because whenever we cross this line from east to west or west to east, always the date will change. That's why this line is called the international date line. Next question. Natural resources are provided to us by. If these are natural resources, so simply they are provided us to by nature. Next question. Dash is taken out from the earth. अभी सन तो अर्थ से नहीं मिलता, एनिमल भी अर्थ से के नीचे से नहीं निकाला जाता, तो it will be petroleum. Next question. Natural resources are divided into dash types. Natural resources को हम 2 types में divide करते हैं. These are renewable and non-renewable. You can also call them exhaustible and inexhaustible, or living or non-living resources. Next, when we go higher in the mountains, it gets. जब हम mountains पर higher बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, हम high altitude पर पहुंच जाते हैं, और जितना ज़्यादा high altitude पर पहुंचते हैं environment उतना ही ज़्यादा cool हो जाता है. That means it gets cooler. Next question. The height of a place above the sea level. See, किसी भी place की height sea level से ऊपर, उसे क्या कहते हैं? It is called altitude. Next, as we moved away from the equator, rays of the sun became. जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो सन की जो किरणें हैं, रेज है, वो कैसी हो जाती हैं? हमें पता है इक्वेटर पर सन की जो रेज होती है वो डायरेक्ट होती हैं, सीधी होती हैं. जब जैसे जैसे हम इक्वेटर से मूव करते हैं, वेदर इन द नॉर्थ डायरेक्शन और इन साउथ डायरेक्शन, दे बिकेम स्लैंटिंग, वो टेढ़ी हो जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट किसके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज. ओके. क्रॉप्स लाइक मेज, राइस, कैसेवा आर ग्रोन इन डैश एग्रीकल्चर. ये सारी क्रॉप्स कौन से एग्रीकल्चर की है? दीज आर द क्रॉप्स ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. नेक्स्ट. द इक्वेटोरियल रीजन डज नॉट हैव डैश सीजन. कौन सा सीजन है जो इक्वेटोरियल रीजन में नहीं होता? दैट इज स्प्रिंग सीजन, क्योंकि ये एवरग्रीन है तो यहाँ पर स्पेशली कोई स्प्रिंग सीजन नहीं होता. नेक्स्ट. The equatorial rainforest lies between dash north and south of the equator. As we know, they lies in equatorial belt, that is from 0 to 10 degree north and 0 to 10 degree south. Next, the amount of rainfall in a desert is less than dash.
डेजर्ट में जो रेनफॉल होती है वो स्कैंटी होती है, और स्कैंटी रेनफॉल को कितना कंसीडर करते हैं, दैट इज 25, लेस देन 25 सेंटीमीटर. Saline water is processed into potable water, particularly in dash. That means saline water, खारे पानी को पोटेबल वाटर, यूजेबल वाटर में कन्वर्ट कहाँ किया जाता है, ये टेक्निक कहाँ पर पर्टिकुलरली यूज की जाती है, दैट इज यूज्ड इन ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट, डैश इज अ डेजर्ट प्लांट. इसमें से कौन सा प्लांट डेजर्ट है, दैट इज अकाशिया. अकाशिया जो है वो डेजर्ट प्लांट है. Ebony, it's a evergreen, rainforest plant, and clover, it's a temperate grass. तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अकाशिया. नेक्स्ट, डेजर्ट हैज अ डैश एनवायरनमेंट. डेजर्ट का एनवायरनमेंट कैसा होता है, कूल होता है, नहीं. रेनी होता है, नहीं. दैट मीन्स हॉस्टाइल, वेरी हार्श एंड डिफिकल्ट. नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ टेम्परेट जोन इज नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ. टेम्परेट जोन का क्लाइमेट कैसा होता है, इट इज एक्सट्रीम क्लाइमेट विच इज़ वेरी हॉट इन समर्स एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स. तो ये ट्रीज की ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ट्रीज नहीं होते, सिर्फ ग्रासलैंड्स होते हैं. डिंगो इज फाउंड इन डैश. डिंगो कहाँ होता है, डिंगो ऑस्ट्रेलिया में होता है. नेक्स्ट, द डैश इन टेम्परेट जोन इज डार्क एंड फर्टाइल. डार्क और फर्टाइल क्या हो सकती है, फर्टाइल ग्रास होती है, एनिमल्स होते हैं, या सॉइल होती है, ऑब्वियसली सॉइल. नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द वर्क इन टेम्परेट ग्रासलैंड इज डन बाय. ज़्यादातर वर्क, क्योंकि टेम्परेट ग्रासलैंड में मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, इसलिए वहाँ पर लेबर वर्क कम होता है और मशीन्स वर्क ज़्यादा होता है. तो ज़्यादातर जो काम होता है वो मशीन्स करती हैं. नेक्स्ट, डैश इज फाउंड इन द ऑस्ट्रेलियन डॉन्स. ऑस्ट्रेलियन डॉन्स में क्या पाया जाता है, दैट इज कंगारू. नेक्स्ट, कर्व फ्लो ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड डैश. जब रिवर माउंटेन से फ्लो करके प्लेन एरिया में आती है तो वो कर्व शेप में फ्लो करना शुरू करती है, और उस रिवर के जो कर्व्स होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मींडर. नेक्स्ट, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड. इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट, सिंपली इट इज एंटार्क्टिका. नेक्स्ट, माउंटेन्स डिफर इन हाइट एंड शेप ड्यू टू देयर एज. क्योंकि उनकी एज अलग होती है, कुछ माउंटेन्स बहुत पहले क्रिएट होते हैं, कुछ माउंटेन्स बाद में क्रिएट होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर एज उनकी हाइट और शेप में डिफरेंस होता है. नेक्स्ट, प्लेट्यूज आर रिच इन डैश. प्लेट्यूज में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मिनरल्स. प्लेट्यूज में मिनरल्स होते हैं. नेक्स्ट, गोबी डेजर्ट इज अ डैश डेजर्ट. गोबी डेजर्ट कौन सा डेजर्ट है, इट्स अ टेम्परेट डेजर्ट, वो टेम्परेट डेजर्ट है. अ डैश इज ए पर्सन और अ फैक्टर दैट पोल्यूट्स द एनवायरमेंट. एक पर्सन जो एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है उसे क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड पोल्यूटर. नेक्स्ट, पॉल्यूशन डैश पॉल्यूशन में लीड टू डीफनेस. डीफनेस मतलब सुनाई ना देना, कानों से सुनाई ना देना. तो कौन सा पॉल्यूशन है जिसकी वजह से हमें सुनाई नहीं दे सकता, दैट इज नॉइस पॉल्यूशन. नेक्स्ट, ऑलमोस्ट डैश ऑफ द अर्थ ओरिजिनल फॉरेस्ट इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड. हमारे अर्थ के जितने भी ओरिजिनल फॉरेस्ट थे उसमें से 50% आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड. अभी जितने फॉरेस्ट हमारे पास बचे हैं ना, वो सिर्फ 50% ही है, उससे ज़्यादा तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. नेक्स्ट, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेड्स आर इंक्लूडेड इन. कॉन्टिनेंट्स दैट मीन्स लैंड एरिया, और ओशियन बेड्स मतलब जो ओशियंस के नीचे की जो तलहटी होती है, दैट इज ओशियन बेड्स. सो दैट इज ऑल्सो लैंड एरिया. सो दीज आर द पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर. नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड, सिंपली जहां पर लाइफ है, दैट इज बायोस्फेयर. नेक्स्ट, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड. अर्थ की 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर. उसमें से इनर मोस्ट सबसे अंदर वाली लेयर, दैट इज कोर, बिकॉज सबसे अपर लेयर जो होती है दैट इज क्रस्ट, मिडल लेयर होती है वो मेंटल होती है, और जो इनर लेयर होती है दैट इज कोर, जहां पर मोल्टन मैग्मा होता है.
A farmhouse where a farmer lives with his family is called dash. टेम्परेट ग्रासलैंड में जो फार्म हाउसेज होते हैं जहाँ पे फार्मर्स अपने फैमिली के साथ रहते हैं, दे आर स्पेशली नोन एज होमस्टेड. उन्हें होमस्टेड कहा जाता है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज fill in the blanks. Question number 1. Dash is the largest circle that can be drawn on a globe. कौन सा ऐसा सबसे बड़ा सर्कल है जो ग्लोब पर ड्रॉ किया जा सकता है? That is equator. Yes, equator is the largest circle that can be drawn on a globe. Next, the parallels are drawn at a distance of, क्योंकि सभी पैरेलल्स एक एक डिग्री अप होते हैं, जैसे टोटल पैरेलल्स 180 होते हैं, तो हर एक पैरेलल की डिग्री होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री. तो मतलब वो कितने डिस्टेंस पे होते हैं? 1 डिग्री के डिस्टेंस पे. द इक्वेटर इज मार्क्ड एज, बिकॉज इक्वेटर सेंटर लाइन होती है, दैट मीन्स इट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री. उसे 0 डिग्री से मार्क किया जाता है. नेक्स्ट, देयर आर डैश पैरेलल्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कितनी पैरेलल्स होती है? 90, बिकॉज की टोटल 180 होती है, 90 नॉर्दर्न में होती है और 90 सदर्न में होती है. डैश इज द इमेजिनरी लाइन ऑन विच अर्थ रोटेट्स. वो इमेजिनरी लाइन जिस पे अर्थ रोटेट करती है, दैट इज एक्सिस. वो एक्सिस है. वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मीट अवर डैश नीड्स. हम नेचुरल रिसोर्सेज हमारी कौन सी नीड्स को पूरा करते हैं? दे फुलफिल, वी यूज दैम टू मीट आर डेली नीड्स. रोज की जिंदगी की नीड्स को पूरा करते हैं, क्योंकि हमें रोज वाटर चाहिए, रोज एयर चाहिए, तो ये हमारी डेली नीड्स को पूरा करते हैं. नेक्स्ट, डैश रिसोर्सेज रीजनरेट इफ द कंडीशंस आर फेवरेबल. कौन से रिसोर्सेज हैं जो रीजनरेट हो जाते हैं अगर कंडीशंस फेवरेबल होती है? दैट इज रीन्यूएबल रिसोर्सेज. नेक्स्ट, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड. एग्जॉस्टिबल मतलब जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, दैट मीन्स दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नेक्स्ट, many countries have made experimental cars that run on solar energy. Yes, बहुत सारी कंट्रीज ने ऐसी एक्सपेरिमेंटल कार्स बनाई हैं जो सोलर एनर्जी पर रन कर सकती हैं. नेक्स्ट, टाइगर्स इन इंडिया आर डैश स्पीशीज. इंडिया में एज टाइगर वी नो इट्स द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. तो जो टाइगर है वो एक्चुअली हमारा एंडेंजर्ड एनिमल है. दैट मीन्स एंडेंजर्ड एनिमल, दैट मीन्स दे आर अबाउट टू एंड. हमारे पास टाइगर्स बहुत कम बचे हैं. अगर वो भी ख़त्म हो गए, वो भी किल हो गए, तो कभी टाइगर्स होंगे ही नहीं. हमारे इंडिया से टाइगर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. सो दे आर एंडेंजर्ड स्पीशीज. नेक्स्ट, द हाइएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द वर्ल्ड इज 58 डिग्री सेल्सियस. अब तक का जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वर्ल्ड में, दैट इज 58 डिग्री सेल्सियस. वो लीबिया के अल अजीजिया में रिकॉर्ड किया गया है. नेक्स्ट, द सन हैज़ ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द डैश ऑफ ए प्लेस. सन का मेजर इन्फ्लुएंस किस पर होता है? क्लाइमेट पर. सन अगर सन डायरेक्ट होता है तो क्लाइमेट कैसा होता है? बहुत हॉट होता है. अगर सन की रेज जो होती है वो डायरेक्ट नहीं होती तो क्लाइमेट थोड़ा कूल होता है. तो वो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. वेदर कंडीशंस कीप ऑन. वेदर कंडीशंस कैसी होती हैं? दे कीप ऑन चेंजिंग. मॉर्निंग में वेदर अच्छा होता है, फिर डे टाइम में वेदर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, नाइट टाइम में मे बी रेनफॉल कैन कॉज और वेदर कूल हो सकता है. सो द वेदर कंडीशंस कीप ऑन चेंजिंग. नेक्स्ट, मुंबई एक्सपीरियंस अ डैश टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर. मुंबई का जो टेम्परेचर होता है वो थ्रू आउट द ईयर मॉडरेट होता है, बिकॉज इट इज़ लोकेटेड नियर द सी. और कूलिंग इफेक्ट ऑफ सी की वजह से यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज कॉल्ड. हवा में जो पानी की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट, रेन फॉरेस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैश % ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन सप्लाई.
पूरे वर्ल्ड की कितनी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जो रेन फॉरेस्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज 28%। मतलब पूरे वर्ल्ड को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसका 28% तो सिर्फ और सिर्फ हमें रेन फॉरेस्ट से मिलता है, बाकी का बाकी फॉरेस्ट से। नेक्स्ट, लार्ज वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन डैश रीजन। जो प्लांट्स हैं वो कौन से रीजन में सबसे ज्यादा होते हैं? दे फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट, एनाकोंडा स्नेक इज फाउंड। कहाँ होता है एनाकोंडा स्नेक? इट इज फाउंड इन अमेजोन बेसिन। नेक्स्ट, डैश ट्राइब्स आर फाउंड इन जायर बेसिन। जायर बेसिन में कौन सी ट्राइब्स होती है? दैट इज बंटू ट्राइब। जायर बेसिन इट इज लोकेटेड इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और यहाँ पर जो ट्राइब होती है दैट इज बंटू ट्राइब। ट्रीज इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ग्रो इन सेवरल लेयर्स। मैंने आपको बताया था इक्वेटोरियल रीजन में जो ट्रीज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में ग्रो करते हैं। 4 लेयर्स होती हैं, दैट इज एमर्जेंट लेयर, कैनोपी लेयर, फॉरेस्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। ये 4 लेयर में वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट, हॉट डेजर्ट्स आर द डैश रीजन्स ऑन द अर्थ। जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं वो कौन से रीजन होते हैं? हॉट डेजर्ट्स आर एक्चुअली द ड्राई रीजन, इसीलिए तो वो हॉट डेजर्ट्स हैं, क्योंकि वहां पर रेनफॉल नहीं होती, सैंडी एरियाज हैं, तो वो ड्राई रीजन है। द सहारा एंड कलहारी डेजर्ट आर फाउंड इन डैश। सहारा एंड कलहारी डेजर्ट कहाँ होते हैं? साउथ अफ्रीका में। सहारा एंड कलहारी डेजर्ट आर फाउंड इन साउथ अफ्रीका। Next, see, this is next question. By mistake, I think it is joined with this question, but it is next one. Desert plants are called dash. Desert plants को क्या कहते हैं? They are known as xerophytes. उन्हें xerophytes कहा जाता है। Next, dash is called the ship of desert. Ship of desert कौन होता है? Camel, right. Next, dash is one of the main occupation of desert people. यहाँ पर डेजर्ट पीपल के बहुत सारे ऑक्यूपेशंस होते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप ट्रेडिंग लिख सकते हैं, माइनिंग लिख सकते हैं, फार्मिंग लिख सकते हैं, कैटल रियरिंग लिख सकते हैं। इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन लिख सकते हैं। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट, वी सेलिब्रेट द अर्थ डे ऑन। अर्थ डे कौन से दिन मनाते हैं? दैट इज 22 अप्रैल। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ वेस्ट शुड बी बैंड या शुड बी स्टॉप्ड। जो वेस्ट की बर्निंग है उसको बंद करना चाहिए। बैन, एक्चुअली बैन करना चाहिए, हमेशा के लिए बंद करना चाहिए, बिकॉज वेस्ट की बर्निंग से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी डेंजरस गैस, सो इट शुड बी बैंड। ओके, डैश इज द कलरलेस एंड ओडोरलेस लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ। कलरलेस मतलब जिसका कोई रंग नहीं होता, ऑडोरलेस दैट मीन्स जिसकी कोई स्मेल नहीं होती। तो ऐसी गैसेस की लेयर को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, डैश % ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। दैट तो एवरीवन नोज दैट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। नेक्स्ट, ऑल द थिंग्स अराउंड अस कंप्राइज अवर। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उससे हमारा क्या बनता है? दैट कंप्राइज आर एनवायरमेंट, उससे हमारा एनवायरमेंट बनता है। नेक्स्ट, a plateau is also called tableland. Plateau because it looks like a table which is flat from surface and it has slopes. So it looks like table, इसलिए इसे tableland भी कहते हैं। Plains are suitable for agriculture. Plains क्या होते हैं? Agriculture के लिए ज़्यादा suitable होते हैं। Next, deserts are formed due to द राइट आंसर इज डिफॉरेस्टेशन। डेजर्ट्स के फॉर्म होने का सबसे बड़ा रीज़न डिफॉरेस्टेशन होता है। जब डिफॉरेस्टेशन होता है, ट्रीज को कट किया जाता है, तो सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, जो अपर सॉइल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वहाँ पर नए ट्रीज ग्रो नहीं हो पाते, रेनफॉल नहीं होता, जिसकी वजह से रीजन ड्राई हो जाता है और वो डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, ईच टेक्टोनिक प्लेट इज ऑलमोस्ट डैश किलोमीटर थिक। हमारी अर्थ की क्रस्ट में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कितनी थिक होती है? दैट इज 100 किलोमीटर थिक। द नेक्स्ट, द कोलोराडो रिवर इन द यूएसए हैज कार्व्ड आउट। जो यूएसए की कोलोराडो रिवर है वो क्या कार्व आउट करती है, क्या बनाती है? इट कार्व्ड आउट द ग्रैंड कैनियन। जो जॉर्ज है, डीप वैली, दैट इज
Grand Canyon. Next, an aardvark is a large mammal that eats ants. aardvark एक बहुत बड़ा मैमल है जो कि ants को खाता है. Next, in the steppes, grasses are dash because of continental climate. क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल होता है तो यहाँ की ग्रासेस शॉर्ट होती हैं, छोटी होती हैं. नेक्स्ट, विंटर्स इन टेम्परेट रीजन आर वेरी डैश. टेम्परेट रीजन में बिकॉज की कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, इसलिए यहाँ के जो विंटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. व्हाट इज एक्सट्रीम क्लाइमेट? विच इज़ वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर. तो यहाँ की विंटर्स क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, कोल्ड होते हैं. नेक्स्ट, द एवरेज साइज ऑफ द फार्म इज डैश इन टेम्परेट रीजन. टेम्परेट रीजन में एक फार्म का एवरेज साइज कितना होता है? दैट इज 1000 हेक्टेयर. 1000 हेक्टेयर तक होता है. गोल्ड एंड डायमंड आर माइंड इन द डैश ग्रासलैंड. गोल्ड और डायमंड को कौन से ग्रासलैंड में माइंड किया जाता है? मतलब इनकी माइंड्स ज़्यादातर कहाँ होती हैं? दे आर माइंड इन द वेल्स ग्रासलैंड. Here the spelling of mind is mistake. It will be MINED. Mine, mining. खान, गोल्ड और डायमंड की खान कहाँ होती है? That is in Wells grassland. Clear? Now come to the next topic, that is question C. Match the following. You have to match. C. Arctic circle. Arctic circle की डिग्री क्या होती है? That is 66.5 degree north. So first will match with D. एनर्जी रिसोर्सेज इन 18th century. 18th century की एनर्जी रिसोर्सेज कौन से थे? देवर कॉल एंड स्ट्रीम. सेकेंड विद ई. गिफ्ट ऑफ नेचर आर वाटरफॉल. थर्ड विद ए. नॉर्थ पोल इज एट 90 degree north. फोर्थ विद बी. एंड द लास्ट, polluted water and air are harmful for living beings. लिविंग बींग्स के हार्मफुल होते हैं. सो 5 विद सी. नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ विंड्स. डायरेक्शन ऑफ विंड्स क्या करते हैं? दे डिटरमाइन द क्लाइमेट. सो फर्स्ट विद डी. वेदर. वेदर इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वेदर जो होती है वो छोटे समय के लिए होती है. सो सेकेंड विद ई. गोरिल्लाज आर फाउंड इन वेस्ट अफ्रीका. गोरिल्लाज कहाँ होते हैं? वेस्ट अफ्रीका में. सो थर्ड विद ए. ऑक्सीजन रिलीज प्लांट, दैट इज ऑर्किड. ऑर्किड जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज प्लांट होते हैं. सो फोर्थ विद बी. एंड टी, कॉफी, रबर, कोकोआ, ये कौन से क्रॉप्स होती हैं? ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर की क्रॉप्स होती हैं. सो फिफ्थ विद सी. ओके, नेक्स्ट सेट, एरियाज कवर्ड विद ग्रासेस. जो एरिया ग्रास से कवर होते हैं, व्हाट दे आर कॉल्ड? दे आर कॉल्ड ग्रासलैंड. सो फर्स्ट विद सी. ग्रासलैंड इकोसिस्टम. ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है? दे कंट्रीब्यूट टू मीट एंड ग्रेन प्रोडक्शन. क्योंकि ग्रासलैंड इकोसिस्टम की वजह से मीट और ग्रेन का प्रोडक्शन होता है. सो सेकेंड विद डी. कन्वर्जन ऑफ सॉल्टी वाटर. सॉल्टी वाटर के कन्वर्जन को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड डीसैलिनाइजेशन. तो दैट इज थर्ड विद ई. थार डेजर्ट. Thar desert is also known as Great Indian Desert. So fourth with A. Copper, petroleum and iron ore. ये कहाँ होते हैं? Sahara Desert में. So fifth with B. Now set 4. Mountain. Mountains are also called highlands. So first with D. Air pollution. Air pollution किससे होता है? Toxic gases की वजह से, जहरीली gases की वजह से. So second with C. Plateau is called tableland. So third with A. Plains are called lowland. So fourth with E. Hydrosphere is the sphere of water. So fifth with B. Next, endangered species. Endangered species कौन सी है? That is tiger. So first with C. Mumbai. Mumbai has moderate temperature. So second with A. Desert plant is xerophytes. डेजर्ट प्लांट को xerophytes कहते हैं ना. तो थर्ड विद ई. फोर्थ, हेविएस्ट लैंड एनिमल इट इज बाइसन. बाइसन जो होता है वो हेविएस्ट लैंड एनिमल होता है. सो फोर्थ विद बी. वी शेप्ड वैली, दैट मीन्स जॉर्ज.
वी शेप्ड वैली को क्या कहते हैं? जॉर्ज. सो फिफ्थ विद डी. क्लियर? नाउ यू हैव टू राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको ट्रू और फॉल्स बताना है. दैट इज आवर क्वेश्चन डी. चलिए. There are 180 lines of longitude. There are 180 lines of longitude. Longitude 180 होते हैं या 360? 360. That means it is false. Prime meridian is taken as 0 degree. Yes, equator and prime meridian both are taken as 0 degree. 180 degree meridian is called international dateline. Yes, 180 degree meridian is called international dateline. That means it is true. नेक्स्ट, टू लोकेट अ प्लेस वी मस्ट नो इट्स लॉन्गिट्यूड. किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए क्या सिर्फ लॉन्गिट्यूड का होना इनफ है? नो, इट्स फॉल्स. लॉन्गिट्यूड के साथ हमें लैटिट्यूड भी चाहिए. नेक्स्ट, ऑल द पैरेलल्स मीट एट पोल्स. क्या पैरेलल्स कभी मिलते हैं? नो, नेवर. पैरेलल्स तो कभी नहीं मिलते. सो दैट इज फॉल्स. दैट्स व्हाई दे कॉल्ड पैरेलल्स. नेक्स्ट, falling water generate electricity. Yes, falling water from the dam, they move the turbine, और turbine के move करने से hydroelectricity generate होती है. So they generate electricity. It is true. Mineral and fossil fuels are living resources. जो minerals और fossil fuels होते हैं, क्या वो living resources होते हैं? No, they are not living resources. It is false. Next, LPG and CNG are used both in homes and industries. LPG और CNG को homes और industries दोनों में use किया जाता है. Yes, true. Densely populated countries need less amount of natural resources. No, अगर वो densely populated है, बहुत ज़्यादा populated है, तो उन्हें large amount चाहिए ना, less amount थोड़ी ना चाहिए. So it is false. Many species of birds and monkeys are already extinct from India. Yes, it is true. Temperate zone is the hottest zone. Temperate zone hottest होता है? No, it has moderate climate. So it is false. Weather conditions keep on changing. Yes, it is true. Places located near equator are very cold? No, false. Because if they are near the equator, they are very hot, not cold. Next, rainfall of a place depends on the humidity level in the air. Yes, humidity level, that means presence of water vapor. उसके ऊपर rainfall depend करता है. Yes, it is true. Next, the temperature is extremely cold near the poles. Yes, poles के पास का जो temperature होता है वो बहुत ठंडा होता है because that lies in the frigid zone. Next, okapis are found in rainforest. Yes, okapis होते हैं ना rainforest में. So it is true. Next, rainforest is spread in Asia, Africa and North America. जो rainforest है वो एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में है? No, false. They lies in Asia, Africa and South America. Next, rainforest are found in frigid zone. Rainforest frigid zone में होते हैं? No, they found in torrid zone. So it is false. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज डन फॉर कमर्शियल पर्पज. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कमर्शियल पर्पज के लिए करते हैं? नो, इट्स फॉल्स. इट इज नॉट डन फॉर कमर्शियल पर्पज. नेक्स्ट, लग्जीरियंट ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड इन रेन फॉरेस्ट. यस, रेन फॉरेस्ट में जो वेजिटेशन की ग्रोथ है वो लग्जीरियंट होती है, बहुत ज़्यादा होती है. यस, इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट, टेम्परेचर इज वेरी लो इन हॉट डेजर्ट. हॉट डेजर्ट का टेम्परेचर लो होता है? नो, इट इज वेरी हाई. सो इट इज फॉल्स. नेक्स्ट, ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन थार डेजर्ट. यस, इट इज ट्रू. थार डेजर्ट में ड्राई फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है. ओके. नेक्स्ट, डेट पाम इज एन इम्पॉर्टेंट ट्री इन डेजर्ट. यस, डेट पाम डेजर्ट का एक इम्पॉर्टेंट ट्री होता है. नेक्स्ट, bottle tree can store 2000 liter of water. No, it's false. It can only store 1000 liter of water. Next, deserts are found in both hemisphere. दोनों हेमिस्फेयर में deserts होते हैं? Yes, deserts are found in both hemisphere. दोनों ही हेमिस्फेयर में deserts पाए जाते हैं. Okay. Next, yes,
A wall is a small rodent resembling a cat. जो wall होता है एक small rodent होता है जो cat के resemble करता है, नहीं, ये false है क्योंकि वो mouse को resemble करता है. Next, temperate region is almost treeless. Yes, it is true क्योंकि वहाँ पर grasses होते हैं, trees नहीं होते. Okay, black-footed ferret is an endangered species of ferret. Yes, it is true. It is an endangered species. Next, minerals are not found in grassland. No, it's not true. It's false because minerals are found in grassland. Grassland में minings होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे minerals होते हैं. Next, the Himalayas are very old mountain ranges in India. No, they are not the very old mountain ranges. They are actually the young mountain ranges. अगर हम वेरी ओल्ड माउंटेन रेंजेस की बात करें तो दे आर अरावलीज. अरावलीज इंडिया के सबसे पुराने माउंटेन्स हैं. नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेन्स इज़ वेरी कूल. जो प्लेन एरिया है वहाँ का क्लाइमेट कूल होता है? नहीं, इट इज़ नॉट कूल. इट डिपेंड्स. इन समर इट इज़ हॉट, इन विंटर इट इज़ कोल्ड. तो हमेशा कूल नहीं होता, वो चेंज होता रहता है. नेक्स्ट, लार्ज लैंड मासेज आर कॉल्ड ओशियन. लार्ज लैंड मासेज को ओशियंस कहते हैं? नो, इट्स फॉल्स. दे आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. नेक्स्ट, माउंटेन रॉक्स आर ऑफ नो यूज. माउंटेन की जो रॉक्स होती है वो कोई यूज की नहीं होती? ऑफकोर्स होती है. सो इट इज फॉल्स. द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. येस, इट इज ट्रू. अर्थ का जो सरफेस है वो लैंड और वाटर से बना है. 71% इज वाटर, 29% इज लैंड. ओके. द मेंटल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ. नो, इट्स फॉल्स बिकॉज अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है दैट इज क्रस्ट, नॉट मेंटल. नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. हमारी अर्थ पर लाइफ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है? नो, इट्स फॉल्स. Oxygen is important, not carbon dioxide. Next, we depend on the environment for our existence. हम हमारी existence के लिए हमारे environment पे depend करते हैं? Yes, it's true. Next, environment has 6 elements. Environment के 6 elements होते हैं? No, it's false. It has 4 elements. Lithosphere, hydrosphere, biosphere and atmosphere. Next, winter in temperate region is वेरी हॉट. टेम्परेट रीजन की विंटर हॉट होती है? नो, इट्स फॉल्स. नेक्स्ट, डेजर्ट रिसीव स्कैंटी रेनफॉल. यस, इट्स ट्रू. जो डेजर्ट्स होते हैं वहां पर रेनफॉल स्कैंटी होती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड. दैट मीन्स आपको स्टेटमेंट के लिए सिर्फ एक वर्ड का आंसर देना है. दे मे बी 2 words ऑल्सो बट नॉट मोर देन दैट. आपको सेंटेंस में आंसर नहीं देना, 1 or 2 words में देना है. ओके. 2 ends ऑफ द अर्थ. अर्थ के 2 एंड कौन से होते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो सिंपली वी कॉल देम पोल्स. POLES, पोल्स. नेक्स्ट, द इमेजिनरी लाइन्स ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. वो इमेजिनरी लाइन्स जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती हैं, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स. अगर यहाँ पर सिर्फ लाइन दिया होता तो आप एक्सिस भी लिख सकते थे बिकॉज एक्सिस जो होती है वो भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती है. बट यहाँ पर आपको लाइन्स दिया है, दैट मीन्स बहुत सारी लाइन्स, तो इट विल बी लॉन्गिट्यूड क्योंकि जो एक्सिस होती है वो एक ही होती है और लॉन्गिट्यूड बहुत सारे होते हैं. नेक्स्ट, द मॉडल ऑफ अर्थ दैट इज ग्लोब. द पार्ट विच लाइज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. जो इक्वेटर के नॉर्थ में है इट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. 0 degree longitude is called prime meridian. Forest, crops, grass and animals are called living resources. Natural resources are important for the development and growth of industries. Next, an important source of energy is solar energy. Next, solar energy can be trapped with the help of solar panels. Next, endangered species in river Ganga is dolphins. Next, the lowest temperature recorded in the world is -89 degrees Celsius. That is recorded in Soviet Vostok
इन एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका के सोवियत वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था, दैट इज -89 डिग्री सेल्सियस. Next, average of weather conditions for a long period of time is called climate. अगर short period of time होता then it will be weather. ये long period of time है तो climate होगा. Next, the wind coming from sea make the region humid. जो समुद्र से वो आती है, wind आती है, it carry moisture. तो वो क्या करती है, humidity को increase करती है, तो वो किसी भी place को humid बनाती हैं. Next, the area lies between Antarctic Circle and South Pole. Antarctic Circle और South Pole के बीच में जो एरिया आता है that is called South Frigid Zone. Not only Frigid Zone, it is South Frigid Zone. Next, the zone which is neither very hot nor very cold is Temperate Zone. जो ना तो बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है. It is Temperate Zone. Next, Equatorial rainforests are also called evergreen forest. Equatorial rainforest को evergreen forest भी कहा जाता है. Next, the climate of equatorial region is hot and humid. क्योंकि ये इक्वेटर के पास है इसलिए hot और यहाँ पूरे साल बारिश होती है इसलिए humid. तो यहाँ का जो climate होता है आप उसे hot and humid भी कह सकते हैं, hot and wet भी कह सकते हैं. Okay? Next, वन इम्पॉर्टेंट ट्री ऑफ रेन फॉरेस्ट इज, इसमें आप कोई भी ट्री लिख सकते हैं, आप एबोनी लिख सकते हैं, महोगनी लिख सकते हैं, और भी इसमें काफ़ी ट्रीज होंगे, तो आप कोई भी एक ट्री का नाम लिख सकते हैं, एबोनी या महोगनी कोई भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट, हैवी रेनफॉल एंड थंडरस्टॉर्म आर टिपिकल इन इक्वेटोरियल बेल्ट. जहाँ पर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट, इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड अरेबिया. नॉर्थ अफ्रीका और अरेबिया में कौन से इनहेबिटेंट्स ट्राइब्स होती हैं, दैट इज बेडुइन्स. नेक्स्ट, गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम एंड लेड आर फाउंड इन. ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में. नेक्स्ट, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड हैविंग वाटर इज कॉल्ड ओएसिस. जो डेजर्ट में स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड होते हैं जहाँ पर पानी होता है उन्हें ओएसिस कहते हैं. नेक्स्ट, the area which receives scanty rainfall is called desert area. जो एरिया जहाँ पर scanty rainfall होती है उन्हें desert area कहते हैं. Next, a substance that pollutes the environment. एक substance जो environment को pollute करता है, it is called pollutant. Next, we celebrate World Environment Day on. World Environment Day कौन से दिन होता है, we celebrate it on 5th June. Next, रिमूवल ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस फ्रॉम समथिंग इज कॉल्ड. दैट मीन्स किसी भी सॉल्यूशन में से पॉइजनस सब्सटेंस, किसी भी जहरीली चीज़ को अलग करना, व्हाट इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड डिटॉक्सीफाई. टॉक्सीफाई का मतलब होता है जहरीली चीज़, और उसमें से जहर को अलग कर देना, इट इज़ कॉल्ड डिटॉक्सीफाई. नेक्स्ट, कट ऑफ लूप ऑफ ए रिवर इज कॉल्ड डैश. किसी भी रिवर का जो एक लूप या एक छोटा सा पार्ट कट होके अलग हो जाता है, इट इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक. नेक्स्ट, वन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन. आपको फोल्ड माउंटेन का एक एग्जाम्पल देना है. इन दिस यू कैन राइट एनी ऑफ द एग्जाम्पल. आप हिमालयाज लिख सकते हैं, एल्प्स लिख सकते हैं, एंड्स लिख सकते हैं, एल्पेचियंस लिख सकते हैं. बहुत सारे फोल्ड माउंटेन्स हैं, उनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं. बेस्ट यू कैन राइट हिमालयाज, इट इज़ वेरी इजी ऑल्सो. नेक्स्ट, द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड इज. पूरे वर्ल्ड का जो सबसे हाइएस्ट प्लेट्यू है दैट इज टिबेटियन प्लेट्यू. जो तिब्बत में है, टिबेटियन प्लेट्यू इज द हाइएस्ट प्लेट्यू. नेक्स्ट, द ग्रासलैंड नॉन एज ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड. कौन से ग्रासलैंड को वर्ल्ड का ग्रैनरी मतलब स्टोर हाउस कहा जाता है, इट इज प्रेरिस ग्रासलैंड. क्यों, बिकॉज कि प्रेरिस ग्रासलैंड में पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसे ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड का स्टोर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. क्लियर? नाउ वी हैव कंप्लीटेड द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ आवर रिवीजन शीट. होप you will practice it and will give the exam properly. Okay, stay safe, stay healthy. Bye.